Good afternoon, everyone. In this class, we'll be covering history. This is chapter number 6, and known as Bhakti Sufi traditions. An important chapter. There are a lot of complex things in this. Obviously, complex ideas are there. And to start, we are not learning about any empire. We are learning about a period, and this time period that we are learning about is 8th to 18th century. Now, during this period, what happened as far as different traditions were concerned, different religious cults, and उसमें क्या बदलाव आया वो हम जानेंगे. Okay, just to give you a fair idea, we have already in fact done the first part of this chapter. I'll be revising a few things. In fact, I'm taking it from the starting. So let us try and understand कि ये किस पीरियड में और क्या चल रहा था. हम देखते हैं initially we see that Indus Valley civilization that existed, they obviously had their own practices and rituals. After that, Indus Valley civilization got over, and we see the coming of Aryans. When Aryans came and they composed Vedas, इसमें से सबसे पुराना उसके ऋग्वेद है. इस वेद में क्या था? इस वेद में था obviously a lot of hymns over there and traditions of sacrificing, and जो three obviously forces of nature, उनको खुश करने के लिए बहुत कुछ इन वेदास में था कि how you can make Indra or Agni or Som. These are basically Indra, rain god, and Agni, sun god, and Som refers to moon. Okay, so in forces of nature को खुश करने के लिए obviously हवन करना and sacrifices देना, मंत्रों का उच्चारण करना, that was the tradition. We will not call it Hinduism. Okay, ये early Vedic traditions थे, then it developed into later Vedic traditions. इनमें बदलाव आते गए, and the kings also obviously they did a lot of rituals इसी से related. वो भी हवन करते थे, and हर चीज़ में जब उनका राज्याभिषेक होता था, when they used to sit on the throne, तब ये ceremonies होती थी, and Brahmins basically were required to do these ceremonies. So we see Rasuya Yagya or Ashwamedh Yagya being performed by different kings, and in most of these rituals, during this time, Brahmins were totally in control. They were controlling the entire system. उनके बिना ये वेद को समझना या किसी भी तरह की कोई भी सेरेमनी कराना, रिचुअल कराना, कोई भी यज्ञ कराना, it was not possible. Okay, the rules were tough, the rules were strict, and there was no flexibility. And during this time, women and Shudra, they were not allowed. They were not part of this. The Vedas were not meant for them. They were not supposed to even hear them. They were not supposed to participate in these rituals. So they were not part of the Vedas. Vedas उनके लिए नहीं थे. दो लोगों के लिए नहीं थे, एक women और एक शूद्र. Okay. Later on हम देखते हैं कि क्योंकि बाकी traditions आने लगे, इसमें बदलाव आने लगा, and slowly later on we see कि पुराने traditions आ गए, Upanishads and all, different mythologies, stories. Okay, and in Puranic traditions में the things were simplified. How they were simplified was that in these Puranic traditions they were written in simple Sanskrit, and they were meant for women and Shudra. Unlike Vedas और Puranic tradition में जो main फर्क है वो ये भी है कि यहाँ पर these are basically being written for women and Shudra who were actually left in this Vedic traditions. तो अब आकर उन्हें include किया गया और उनके लिए ये Puranic traditions में obviously उनके लिए ये लिखे गए. Okay, बाद में हम देखते हैं कि ये विष्णु एंड शिव, इनके obviously ग्रुप्स हो गए, फॉलोअर्स ऑफ विष्णु एंड फॉलोअर्स ऑफ शिव, और ये अलग दो ग्रुप हो गए. एंड people who worship Shiv, they considered him as supreme. The people who worship Vishnu, they considered him as supreme. Not just these two,
इनके डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे विष्णु के हम देखते हैं 10 अवतार हैं, अवतार में डिस्कस, तो वो सारे फॉर्म्स वगैरह हम देखते हैं। दो एक तरीके से ग्रुप्स में लोग बढ़ गए, वन वर दे कंसिडर्ड शिव एज सुप्रीम, द अदर्स कंसिडर्ड विष्णु एज सुप्रीम। बाद में हम देखते हैं तांत्रिक ट्रेडिशंस, ये स्टार्ट हो गए। तांत्रिक ट्रेडिशंस का इनसे कोई लेना देना नहीं है, दे somehow not related, they don't relate themselves to these Vedas, they don't subscribe to the authority of Vedas, वो इन वेदास के अहमियत को नहीं मानते, वो इनके बनाए हुए तौर तरीके, ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसको ये नहीं मानते। तांत्रिक ट्रेडिशन में anyone who comes, anyone who participate, be it a शूद्र और women and everyone, obviously इन्होंने वेदास को बिल्कुल भी नहीं माना। यहाँ पर हम आके देखते हैं ये जो फेज है पुराने ट्रेडिशन से, हम यहाँ पे obviously वेदास जो है उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, एंड पीपल दे एक्चुअली स्टॉप, दे डिड नॉट स्टॉप, बट यहाँ पे जो कंट्रोल था इन वैदिक ट्रेडिशंस का, ये काफ़ी हद तक इनका इन्फ्लुएंस कम होने लगता है और ये पेरिफेरी में चले जाते हैं। नाउ पीपल वर नॉट एक्चुअली डूइंग मच टू अपीज देम, इनको खुश करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। अग्नि, इंद्र एंड सोम ये ख़त्म नहीं हुए, ओके, वेदास ख़त्म नहीं हुए, वेदास की अथॉरिटी थी बट वो अथॉरिटी नहीं थी जो उस समय हुआ करती थी, एंड ऑब्वियसली ये पेरिफेरी में चले गए और जो सामने जो गॉड्स आ गए वो थे शिव एंड विष्णु, ओके। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ cults, historians who have tried to understand these developments suggest that there were at least two processes at work. इस समय दो चीज़ें हो रही थी और उन दो चीज़ों का नतीजा है ये। क्या दो चीज़ें हो रही थी? These are the two processes at work. One was that Brahmins were now trying to disseminate information. They were trying to disseminate Brahminical ideas. जो उनकी ये ideas, उनका ये जो system था Brahminical order, ये जो उनके वैदिक ट्रेडिशन थे, अब इसे ये लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे और इन लोगों को पहुंचाने के लिए ये अलग अलग कहानियों का सहारा ले रहे थे, एंड दे वर टेकिंग हेल्प ऑफ एन ईजियर संस्कृत लैंग्वेज, नॉट दैट टफ लैंग्वेज जिसमें भी वेदास लिखे हुए हैं। सो दिस इज व्हाट दे वर डूइंग। पुरानिक टेक्स्ट, और इसका ये एविडेंस है कि ये अपनी जो सिस्टम है उसको लोगों तक पहुंचा रहे थे। वाई? बिकॉज पुराने टेक्स्ट जो है वो उस टफ लैंग्वेज में, संस्कृत में नहीं लिखे हुए हैं जिसमें वेदास लिखे हुए हैं, विच मीन्स दैट दे वर मेंट फॉर ऑर्डिनरी पीपल, दे वर मेंट फॉर अदर पीपल, एंड दे वर ऑल्सो मेंट फॉर विमेन एंड शूद्र, जिनको ऑब्वियसली पहले वैदिक ट्रेडिशंस में नहीं दिया गया था, ओके। तो एक तो ये चीज़ हो रही थी कि ब्राह्मण्स ट्राई कर रहे थे इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ओके। सेकंड, दे वर ऑल्सो एक्सेप्टिंग, अब ये इतने रिजिड नहीं थे, अब ये अपने सिस्टम में बदलाव लाने को भी तैयार थे। उस समय जो नई नई ट्रेडिशंस आ रही थी उनको एक्सेप्ट कर रहे थे, समझ रहे थे, वो उसको मॉडिफाई कर रहे थे, और कुछ चीज़ों को मतलब अपने ही सिस्टम को वो मॉडिफाई कर रहे थे, बदल रहे थे, जिससे कि उसकी एक्सेप्टेंस लोगों में ज़्यादा बनी रहे। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कल्चर। वाई हिंदुइज्म विच स्टार्टेड सो लॉन्ग बैक अगो, हिंदू एज अ रिलीजन कब बना, कब आया रियल फॉर्म में, वो एक डिबेटेबल चीज़ है, बट यही सब चीज़ें जाकर आगे हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये सब चीज़ें सर्वाइव इसलिए भी कर गई बिकॉज इनमें कॉन्स्टेंटली बदलाव होते गए। जो समाज में बदलाव आया उसको रिलीजन में इनकॉर्पोरेट हम करते गए, ओके। तो अगर हमने देखा कि बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, एंड बुद्धिज़्म इज टॉकिंग अबाउट नॉन वायलेंस, सो नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट कर लिया गया, एंड दैट बिकेम पार्ट ऑफ दी ऑब्वियसली जो हिंदुइज्म है उसका वो इंक्लूड कर लिया गया। सो वी केप्ट इंक्लूडिंग लॉट ऑफ थिंग्स, ऑब्वियसली कभी बुरे इन्फ्लुएंस भी आए, कभी कुछ नेगेटिव लाइक द पर्दा सिस्टम, एंड प्रोबेबली जो बाकी डावरी एंड द सती एंड ऑल, प्रोबेबली दीस थिंग्स वर नॉट देयर, ये भी ऑब्वियसली रिलीजन में ट्रेडिशंस में इन्वॉल्व हो गए, तो कुछ बुरे इन्फ्लुएंसेस भी हुए, बट सोसाइटी में जो कुछ हो रहा था दैट वाज बीइंग रिफ्लेक्टेड थ्रू रिलीजन। अब ये वो नहीं था
बेसिक ट्रेडिशन नहीं था जहाँ पर जो लिखा है जैसे लिखा है वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। सो दे वर एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग बिलीव्स, अपने ही सिस्टम को वो मॉडिफाई कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो एक तरफ तो वो अपना जो ब्राह्मणिकल जो आइडियाज़ है उसको डिसेमिनेट, मतलब उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना चाह रहे हैं, बाकी लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। पहले वो नहीं पहुंचाना चाहते थे, पहले तो इनफैक्ट रिस्ट्रिक्शन था कि नहीं मैंने शूद्र ये आपके लिए है ही नहीं, आप नहीं वो सुन सकते पढ़ सकते। लेकिन अब वो खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ब्राह्मणिकल जो उनका आइडिया है ये लोगों तक पहुँचे। सेकेंडली उस समय के जो ट्रेडिशन हैं उनको वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग डिफरेंट बिलीव्स। सिंपल है, इफ आई कैन यूज वन सिंगल वर्ड, दे वर मॉडिफाइंग देयर बिलीव्स। ओके, वो अपने ही सिस्टम को मॉडिफाई कर रहे थे सो दैट इट बिकम्स मोर सूटेबल टू पीपल। ओके, इसी में हम बात करेंगे ग्रेट ट्रेडिशंस एंड लिटिल ट्रेडिशंस। वी टॉक अबाउट दैट। ग्रेट ट्रेडिशंस में मेन गॉड्स एंड गॉडेसेस को वर्शिप करते हैं। मेन ट्रेडिशन जो कि वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं ओवर अ लॉन्ग रीजन एंड कई लोगों में ये फैला होता है। लिटिल ट्रेडिशन इज अबाउट ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर एरिया विच इज समथिंग लोकली वो चीज़ होती हो, लाइक now in most of the families we have these, जिन्हें हम कहते हैं लोकल डेटीज होती हैं उनकी, एंड कुल देवी जिन्हें हम कहते हैं, जो कि उसी परिवार के लोग उन्हें मानते हैं और उन्हें पूजते हैं। we get to see this more in Rajasthan also. We get to see in the rural areas where people outside the village you will see a small, not just temple, एक stone and उस पर सिंदूर लगा कर people come and worship there। लेकिन वहाँ पे दूर दूर से लोग नहीं आते हैं, उसी गांव के लोग या एक दो गांव के लोग उन देवी को मानते हैं, तो वो लिटिल ट्रेडिशन होगा। लेकिन वही लोग फिर राम को भी पूजते हैं, कृष्ण को भी पूजते हैं, वो जन्माष्टमी भी मनाते हैं, वो दशहरा दिवाली भी मनाते हैं, तो वो ग्रेट ट्रेडिशन भी फॉलो कर रहे हैं। बट पैरेलल टू दिस ग्रेट ट्रेडिशन दे ऑल्सो हैव दीज लिटिल ट्रेडिशंस, उनके अपनी बिलीव्स और अपनी मान्यताएं भी हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे ये लिटिल ट्रेडिशंस भी समटाइम्स वेंट ऑन टू बिकम पार्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन। और उसी में जिक्र है पुरी के मंदिर का। पुरी के जो मंदिर है वहाँ पर जो आइडल है उसे आइडेंटिफाई किया गया है एज जगन्नाथ, यानी जगन्नाथ कोई और नहीं बल्कि विष्णु ही है या उन्हीं का कोई फॉर्म है ये। सो विष्णु से उनको रिलेट किया गया है, बट बेसिकली ये क्या रहे होंगे, ये लिटिल ट्रेडिशन का हिस्सा रहे होंगे। इनको वहाँ पर लोकली लोगों ने, ये एक वुड की बनी हुई मूर्ति है और उसे लोगों ने वर्शिप करना शुरू किया ये उड़ीसा पूरी रीजन में। एंड देन लेटर ऑन इट वाज आइडेंटिफाइड कि दिस deity is nothing but form of Vishnu, and then it became part of the great tradition. Okay, a local deity whose image was and continues to be made of wood even today, सभी भी wood से बनाते हैं, by local tribal specialists। तो ये उनके local traditions में से था, was recognized as a form of Vishnu। At the same time, Vishnu was visualized in a way that was very different from that in other parts of the country। तो ये विष्णु के फॉर्म है, लेकिन ये विष्णु का वो फॉर्म नहीं है जिसको हम बाकी देश के हिस्से में देखते हैं। कि हम कृष्ण के रूप में या राम के रूप में, और उनके जो फीचर्स हैं वो फीचर्स ऑब्वियसली यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। मोर ओवर दिस इज मेड अप ऑफ वुड, जो कि बाकी जगह हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सच इंस्टेंसेस ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये लिटिल ट्रेडिशंस ये ऑब्वियसली ग्रेट ट्रेडिशन में मर्ज होने लगे। सो सच इंस्टेंसेस ऑफ इंटीग्रेशन आर एविडेंट अमंग गॉडेसेस। और अब ये गॉडेस कल्ट्स भी थे, व्हिच आई टोल्ड यू दैट एवरी रीजन, एवरी पार्ट, एवरी विलेज दे हैड देयर ओन गॉडेसेस, जिन्हें हम कुल देवी कहते हैं। वर्शिप ऑफ द गॉडेस often simply in the form of a stone smeared with ochre। Okay, often simply in the form of stone smeared with ochre was evidently widespread। और ये देखने को मिलता है, ये अभी भी देखने को मिलता है। This is nothing that it has got over। If you go to rural areas, you will still get to see whenever they have some ceremony, like there is a marriage or something, then obviously
वो मंदिर जाते हैं, दे प्रे टू पॉपुलर डेटीज लाइक शिव और कृष्ण एंड राम एंड ऑल, दे ऑब्वियसली उनकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर वो अपने घर में भी उनके अपने लोकल डेटीज होते हैं, या फिर वो विलेज के भी लोकल डेटीज होते हैं, उनकी भी वहाँ पर पूजा होती है। ओके, सो such instances of integration are evident among goddess cults as well. These local deities were often incorporated within the Puranic framework and by providing them with an identity. अब इनको कोई आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई है पुरानिक मैथोलॉजीज में, पुरानिक ट्रेडिशंस में, कि ये देवी कोई और नहीं है बल्कि ये विष्णु की वाइफ है, मतलब लक्ष्मी है, या फिर ये शिव की वाइफ है, मतलब पार्वती है। तो इनको मेन गॉड से फिर लिंक किया। सो व्हाट वी आर सेइंग इज लिटिल ट्रेडिशन, ये गॉडेसेस कौन है, दे आर पार्ट ऑफ द लिटिल ट्रेडिशंस, एंड ये शिव एंड विष्णु कौन है, दे आर पार्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन। सो दिस लिटिल ट्रेडिशन, इनको ऑब्वियसली स्टेटस इनका बढ़ाकर they merged into the great traditions. So sometimes they were equated with Lakshmi, the wife of Vishnu. In other instances with Parvati, the wife of Shiv. इसी में हम बात करेंगे कि वैदिक का जो था, the divergence in perhaps most stark if we compare Vedic and Puranic traditions को अगर हम compare करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बहुत divergent views हो रहे थे। तो वैदिक एंड पुराण को अगर हम कंपेयर करें, तो वेदास में जो प्रिंसिपल डेटीज हैं वो ये तीन हैं, मैंने बताया, अग्नि, इंद्र एंड सोम। ये उसमें नेचुरल फोर्सेस को वो लोग ज़्यादा वर्शिप करते थे। सो दे वर वर्शिपिंग सन गॉड एंड रेन गॉड एंड मून। ओके, तो ये मेन थे। एंड लेकिन अब दीज प्रिंसिपल डेटीज ऑफ वैदिक पैंथियन, अग्नि, इंद्र एंड सोम बिकेम मार्जिनल फिगर्स। ये उसकी मार्जिनल हो गए, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, and rarely visible in textual or visual representations. अब ये उतना नहीं देखने को मिलते थे। And while we can catch a glimpse of Vishnu, Shiv and the goddess in Vedic mantras में हम देखते हैं कि इनका कुछ जिक्र है विष्णु, शिव and goddesses का। They have little in common with the elaborate Puranic mythologies. However, in spite of these obvious discrepancies, the Vedas continue to be revered as authoritative. Now यहाँ पे ये कहा गया है वेदास का इन्फ्लुएंस जरूर कम हुआ है। वो जो अथॉरिटी थी कि टोटली सब कुछ वैसे ही होता था जैसा वेद में लिखा हुआ था, बट समाउ इनका जो इन्फ्लुएंस था अब वो नहीं था, कम हो गया था। नॉट सरप्राइजिंगली देयर वर समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल। ओके, और इनका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ था, तांत्रिक ट्रेडिशन था, बिकॉज तांत्रिक्स टोटली didn't believe in Vedas, they didn't subscribe to the authority of Vedas। हम वेदास को नहीं मानते, हमारा अपना सिस्टम है, हमारे सिस्टम में they didn't believe in caste system and anyone whosoever came to them, obviously उन्होंने अपने तांत्रिक ट्रेडिशंस में उन्हें इंक्लूड कर लिया, चाहे वो विमेन थे चाहे शूद्र थे, कोई भी हो। ऑब्वियसली उन्होंने वो जो डिवीजन जो वेदास के हिसाब से था और जो तौर तरीके जो वेदास में बताए गए थे उन्हें इन तांत्रिक ट्रेडिशंस ने फॉलो नहीं किया। ठीक है, दे फ्रीक्वेंटली इग्नोर्ड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ऑल्सो डिवोटीज ऑफन टेंडेड टू प्रोजेक्ट, हियर वी हैव दीस तांत्रिक ट्रेडिशंस में डिड नॉट बिलीव इन अथॉरिटीज ऑफ वेदास, दे वर ओपन टू ऑल women and people of all castes. Okay, तो ये एकदम कंट्रास्ट है एंड इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। Okay. Also, devotees often tended to project their chosen deity, either Vishnu or Shiv, as supreme. पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये विष्णु एंड शिव उनको सुप्रीम मान रहे हैं। Relations with other traditions such as Buddhism or Jainism were also often fraught with tension, if not open conflict. तो ये हम देख रहे हैं कि तांत्रिक traditions इवॉल्व हो गए, वर्शिप ऑफ शिव एंड विष्णु, एंड यहाँ पे उस समय बाकी ट्रेडिशंस भी थे। 6th सेंचुरी BC के बाद का ये पीरियड है जहाँ पर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये भी फैल चुके थे एंड लोग इनमें भी बिलीव करते थे। द ट्रेडिशंस ऑफ डिवोशन और भक्ति, और इसी कंटेक्स्ट में हम इस भक्ति एंड डिवोशन को पढ़ेंगे।
devotional worship had a long history of 1000 years before the period we are considering. तो ये पुरानी चीज़ है, पहले से आ रही थी, कोई नई चीज़ नहीं है. Okay, during this period, expressions of devotion range from the routine worship of deities within the temples to ecstatic adoration, where devotees attained a trance-like state of prayer. ऊपर कंट्रोल को जाना, एकदम उसी में समा जाना. Okay, the singing and chanting of devotional compositions were often part of such modes of worship. This was particularly true of Vaishnava and Shiva sects. Poems of prayer, early traditions of bhakti, हम यहाँ पे भक्ति के early traditions देखेंगे, and उसमें we learned about शगुन and निर्गुण. तो दो तरह की भक्ति है. एक तो वो लोग के वे मूर्ति पूजा, मूर्ति टेम्पल्स में जाके वर्शिप करना, ओके, पोर्ट्रेट्स उनको वर्शिप करना, दैट इज कॉल्ड शगुन. एट्रीब्यूट्स हैं, सामने हैं, दिखते हैं, मूर्ति है, फीचर्स हैं उनके. और दूसरी तरफ है निर्गुण, जहाँ पर गॉड एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इज नो वे टू बी सीन, और उसको हम कहेंगे निर्गुण. तो दोनों थे, सम बिलीव इन निर्गुण, सम बिलीव इन शगुन. ओके, तो ये दो फॉर्म्स हैं भक्ति के. सो भक्ति ट्रेडिशंस के दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज शगुन एंड द अदर वन इज निर्गुण. ओके, सो the former includes traditions that focus on the worship of specific deities such as Shiva, Vishnu and his avatars. जब मैंने 10 अवतार की बात की थी, तो उनको फॉर्म को, मूर्ति पूजा जो बेसिकली टेम्पल्स में या घरों में जहाँ पर भी है, इसी फॉर्म को पूजना, दैट वाज कॉल्ड शगुन. निर्गुण भक्ति और द अदर हैंड वाज वर्शिप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड. ओके, तमिलनाडु में हम देखेंगे what was happening in Tamil Nadu. Alvars and Nayanars. कुछ नए नाम आएंगे, कुछ नहीं, काफ़ी सारे नए नाम आएंगे. You may not be aware because ये साउथ इंडिया है. We'll see lot of new names. हम कर्नाटक के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, तमिलनाडु के बारे में पढ़ेंगे. Obviously these are new for us. Alvars and Nayanars, who they were. Some of the earliest bhakti movements were led by Alvars, and Alvars were people who worshipped Vishnu, and Nayanars were devotees of Shiva. Okay, they travelled from place to place singing hymns in Tamil in praise of their gods. तो ये लोग थे जो घूमते रहते थे और अपने भगवान के प्रेज में जो हिम्स थे उन्हें वो गाते थे. तो अगर वो अलवर हैं, they were singing hymns in praise of Vishnu. If they were Nayanars, they were singing in praise of Shiva. During their travels, the Alvars and Nayanars identified certain shrines as abodes of their chosen deities. अब वो जब घूमने लगे तो उन्होंने कुछ जगह को ज़्यादा सीक्रेट या अपने डेटी से एसोसिएट करने लगे. ओके, वेरी ऑफन लार्ज टेम्पल्स वर लेटर बिल्ट एट दीज सीक्रेट प्लेसेस. तो जिन जगह को इन्होंने चुना या उन्हें लगा कि ये हमारे डेटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है, बाद में उन्हीं जगह पर वो टेम्पल्स वगैरह बिल्ड होने लगे. These devotees, these developed as centers of pilgrimage. Singing compositions of these poet saints became part of temple rituals in these shrines, as did worship of saints' images. Now, इसी context में you can place what you learned in विजयनगर, जहाँ पे हमने विरूपाक्ष एंड विठाला टेम्पल की बात की थी. So विरूपाक्ष एंड विठाला, तो ये टेम्पल्स प्रोबेबली उन्हीं जगह पर बिल्ड हुए जो कि पॉपुलर हो चुके थे, जहाँ पर ये अल्वर्स एंड नायनार्स विजिट करते थे, एंड दे कंसिडर दिस प्लेसेस सीक्रेट. सो दैट मे बी द रीजन दैट दोस टेम्पल्स वर बिल्ड देयर. एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कास्ट इन अल्वर्स एंड नायनार्स का इस कास्ट सिस्टम के प्रति क्या रवैया था, उसके बारे में उनका क्या समझना था, क्या सोचते थे वो. Some historians suggest that the Alvars and Nayanars initiated a movement of protest against the caste system. They like also didn't believe in caste system. Okay, and they did believe in this dominance of Brahmanas
और एटलीस्ट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म दिस सिस्टम, उन्होंने कोशिश की इस सिस्टम को सुधारने की। और ये ब्राह्मण के बनाए हुए सिस्टम का ये कास्ट सिस्टम है, और को ये अल्वर्स एंड नायनार्स नहीं मानते थे। इससे पहले डिवोशन का जो तरीका था कि आपको कुछ करना है, यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ रिचुअल, यू रिक्वायर्ड ब्राह्मण्स, यू हैड टू गो टू द टेम्पल, यू रिक्वायर्ड अ प्रीस्ट, एक हवन करने के लिए रिक्वायर्ड अ ब्राह्मण टू डू दैट। बट हियर इस डिवोशनल में, इस भक्ति में, देयर इज नो लिंक, ओके, इट्स डायरेक्ट, डिवोटी एंड द गॉड, उनके बीच में कोई लिंक नहीं है, ओके। वो ये किसी ब्राह्मण का या किसी रिचुअल या किसी पूजा पाठ का हेल्प नहीं लेते। दे यूज्ड टू डायरेक्टली लिंक देमसेल्व्स टू देयर डेटीज, ओके। एंड इसीलिए ये ब्राह्मण्स की अथॉरिटी या उनके सिस्टम को नहीं मानते थे, और इन्होंने अटेम्प्ट किया कि उसे वो बदल सकें। टू सम एक्सटेंट दिस इज कोरोबोरेटेड बाय द फैक्ट that bhaktas hail from diverse social backgrounds. भक्तास, वो जो भक्त है वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते थे, and they were ranging from brahmins to artisans and cultivators and even from caste considered untouchables. तो ये कौन है अल्वर्स एंड नायनार्स, ये किस कास्ट के हैं? ये सभी कास्ट के हैं, ये सोसाइटी के हर उससे कैटेगरी से आए हुए हैं। इसमें ब्राह्मण्स भी हैं, इसमें लोअर कास्ट भी हैं, आर्टिजन्स भी हैं, पीजेंट्स भी हैं, ओके। द इम्पोर्टेंट ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ द अल्वर्स एंड नायनार्स was sometimes indicated by the claim that the compositions were as important as the Vedas. और इन ट्रेडिशन में ये अल्वर्स एंड नायनार्स के जो कंपोजिशंस हैं उनको वेदास से कम नहीं माना जाता था। For instance, one of the major anthologies of compositions of the Alvars, the Nalayara, obviously these are tongue twisting names, and Divya Pradhavan, okay. So, Prabandham, okay. So, Nalayara Divya Prabandham, ये अल्वर्स का कंपोजिशन है, थोड़े नाम tongue twisting जरूर है, but I told you in this Tamil and next section we in Karnataka also we will come up across these names. So this is Alvars की जो composition है, this is called Nalira Divya Pradhavan, okay. So Prabandham was frequently described as the Tamil Veda. इसकी importance क्या थी? इसको तमिल वेद का नाम दिया गया, मतलब this is no less than Vedas. Vedas important है, तो ये जो अल्वर्स ने जो कंपोज किया है अपने डेटी के लिए, अल्वर्स के डेटी थे विष्णु, तो ये जो कंपोजिशन है इसे वो तमिल वेद के नाम से जानते थे और इसको वेद से कम नहीं समझते थे। Thus claiming that the text was as significant as the 4 Vedas in Sanskrit that were cherished by the Brahmanas. तो इन्होंने अपने कंपोजिशन को कोई कम अहमियत नहीं दी, एंड दे थॉट कि इनकी जो कंपोजिशन है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट, उतनी भी ही उसकी अहमियत है जितना कि उन 4 वेदास की है जो कि ब्राह्मण्स में कंपोज किए हैं, ओके। इसका एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस भक्ति ट्रेडिशन में विमेन डिवोटीज भी काफ़ी थे। सो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दीज ट्रेडिशंस वाज द प्रेजेंस ऑफ विमेन। फॉर इंस्टेंस द कंपोजिशंस ऑफ अंडल, अंडल एक विमेन अलवर, वुमेन अलवर और वाइडली सन। तो ये कंपोजिशन जो कि अंडल एक लेडी है, लेडी थी, विमेन थी, और इन्होंने काफ़ी कुछ कंपोज किया। मतलब ये कि इन अलवर्स एंड नायनार्स में, इस भक्ति ट्रेडिशंस में देयर वर लॉट ऑफ विमेन, और वो भी शामिल थी इसमें, ओके। एंड दे आर सो पॉपुलर कि आज भी उन्हें गाया जाता है। अंडल सॉ हरसेल्फ एज द बिलवड ऑफ विष्णु, जैसे कि मीरा का हम और में देखेंगे कि मीरा अपने आप को शी इज टू कंसिडर बिलवड ऑफ कृष्ण, यहीं पर कृष्ण ऑब्वियसली विष्णु की फॉर्म है। तो यहाँ पर अंडल, ये साउथ इंडियन जो वुमेन है, शी हरसेल्फ सॉ एज बिलवड ऑफ विष्णु, और उन्होंने बहुत कुछ कंपोज किया, बहुत लिखा उन्होंने, एंड हर वर्सेस एक्सप्रेस हर लव फॉर द डेटी, और ये उनके जो कंपोजिशन है उससे पता चलता है। तो ये नाम याद रखते हैं। और इसलिए अलवर्स का ये नलीरा दिव्य प्रबंधम, ये इसको तमिल वेद का स्टेटस दिया जाता है,
एंड उसे क्लेम करते हैं कि देयर टेक्स्ट, ये जो अल्बस में जो लिखा, इज इक्वल टू द 4 वेदास। देन यू मस्ट रिमेंबर women भक्ति जो डिवोटीज हैं उसमें दिस women called अंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी बहुत कंपोजिशंस हैं जो कितनी पॉपुलर है कि आज भी गाई जाती है। शी कंसिडर्ड herself beloved of Vishnu and her verses express her love for the deity। और एक और women है कराईकाल अम्मयार। ओके, सो कराईकाल अम्मयार, she was a devotee of Shiva। ओके, वो Andal was a devotee of Vishnu, whereas Karaikal Ammayar was a devotee of Shiva and adopted the path of extreme asceticism in order to attain her goal। Her compositions were preserved within the Nainar traditions, obviously वो Nainar traditions नहीं हुई क्योंकि वो शिव की भक्त हैं। These women renounced their social obligations, उन्होंने घर बार छोड़ दिया, अपने सोशल ऑब्लिगेशन को छोड़ दिया, बट डिड नॉट ज्वाइन एन ऑल्टरनेटिव ऑर्डर। इन्होंने बुद्धिज्म या जैनिज्म या किसी और ट्रेडिशन को ज्वाइन नहीं किया, बट डिड नॉट ज्वाइन एन ऑल्टरनेटिव ऑर्डर और बिकम नन्स। देयर वेरी एग्जिस्टेंस एंड देयर कंपोजिशंस पोज्ड अ चैलेंज टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स। ओके, तो उन्होंने अपने सोशल ऑब्लिगेशन को छोड़ दिए, लेकिन वो नन्स नहीं बने। और यही एक पैट्रियार्किकल जो सोसाइटी थी हमारी, जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, उसको एक तरीके से इन्होंने चैलेंज किया, क्योंकि दे वर बिकमिंग इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन सोसाइटी, तो दे वर इन अ वे चैलेंजिंग पैट्रियार्किकल सोसाइटी। यहाँ पर एक कंपोजिशन है अबाउट कराईकल अम्मयार, उनकी ये ब्रॉन्ज इमेज है एंड ऑल्सो composition written by her। Okay, so we'll move further in the next class and we'll see what were their relationship with the states। उस समय के जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे, उनके साथ उनके कैसे रिश्ते थे, और वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, so that's all in this class। Thank you।